afternoon to all of you. I'm Ankit Vashist, member of Gandhi Studies Circle, and I do welcome you all on the behalf of Gandhi Studies Circle. This is our third interactive session, lecture series that is based on the topic theme and that is based on what help can you get from Gandhi's life and thoughts. Before we proceed towards today's beginning of the session, I would like to first of all wish you all very happy Republic Day. I hope you all have seen Republic Day parade. So let's before beginning, we have to come across how many earlier two sessions we have conducted. The first session, interactive session we have conducted was on the topic Practicing Gandhi, the challenge today, which was taken by Dr. Radha Chandra Pradhan. He is social activist and eminent Gandhi scholar. The second interactive session was taken by Practicing Gandhi, the challenges today, which was taken by Second interactive session was taken by Gandhi, the relevance of his philosophy in modern age, which was taken by His Excellency Dr. Roger Gopal, High Commissioner of Republic of Trinidad and Tobago. Now, moving forward to today's session, the theme of today's session is what help can you get from Gandhi's life and thoughts by author and journalist Sopan Joshi. Before we proceed, let's know about Gandhi Study Circle and how we carry on forward. गांधी जी के विचारों के ऊपर कईयों का समर्थन अब कई लोगों का विचार विमत है। कई लोग गांधी जी को या तो पूर्णतः मानते हैं या कई उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। हमें कहीं भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहां पर उनके तर्कों और उनके तर्कों को एक साथ हम ला सके। गांधी स्टडी सर्कल एक ऐसा माध्यम है जहां पर हम गांधी जी की सोच को और उनके विरुद्ध जो भी तर्क है उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि गांधी जी के प्रति जो लोग रूढ़िवादी धारणा बना रखे हैं वो या तो उनके पक्ष में बोलते हैं या फिर उनके विपक्ष में। कभी भी एक पक्ष दूसरे पक्ष के बारे में सुनना नहीं चाहता है, लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए हम प्रयत्नरत हैं। कहा जाता है कि भगवान ने इंसानों को बनाया है और इंसानों की तो दो ही मेरे काम है, मुख्य काम है। पहला गलती करना या दूसरा अच्छे काम करना। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे कोई गलतियां नहीं होगी, लेकिन क्या उनकी गलतियों की चर्चा नहीं की जानी चाहिए? उनकी गलतियों की चर्चा अवश्य करनी चाहिए। क्यों? ये इसलिए नहीं क्योंकि उनकी गलतियों को हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं या चिन्हित करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि हम उनकी गलतियों से कुछ सीख सकें। इसी विषयों के ऊपर हमें जानना चाहिए कि गांधी जी ने अपने जीवन काल में भी बहुत सारे कार्य किए। कुछ तो अच्छे कहते हैं और कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने कार्य को गलत किया है, लेकिन इन सभी के ऊपर चर्चा करने जो एक प्लेटफॉर्म चाहिए वो गांधी स्टडी सर्कल प्रोवाइड कराता है। गांधी स्टडी सर्कल केवल इंटरेक्टिव सेशन ही नहीं, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों को भी आयोजित कराता है, जिसमें कि मेडिटेशन सेशन, लेक्चर सीरीज, चरखा क्लासेस और वेरियस कोर्सेज की डिटेल्स जो हम अलग अलग कोर्सेज अभी हम चलाते हैं। इसके बारे में मैं अनुरोध करूंगा श्रुति से ऐसा इंट्रोडक्टरी वीडियो आप सबके सामने चलाएं। श्रुति, ओवर टू यू। Srishti, can we please have the video? Yes, sir. Just 1 minute. Okay.
very much, Shrishti, for providing the video, introductory video. Now, among us, we have our principal, Sangeeta Pandit ma'am. Unlike other principal, where you have to take a lot of official and lot of formalities to introduce and to go with them or talk to them, we are very fortunate to have our principal, Dr. Sangeeta ma'am, who has been one of our mentors and always guided us towards new ideas. She has always motivated us to take new initiatives and also make us sure that we do not feel any kind of hesitation to reaching her out. Now, it's my pleasure to welcome our principal, Dr. Sangeeta ma'am. Sangeeta ma'am, please. Ankit, I think because of some technical reasons, he is not unable to join. I think she might join later. As of now, you can continue with the proceedings. Okay, sir. Okay, sir. That's as we know that Sangeeta ma'am would be joining us later due to some technical glitches. Let's follow on today's program. So, सबसे पहले तो मैं स्वागत आपका आगे करना चाहता हूँ हमारे कन्वीनर संजीव सर, जो हमेशा हमारे मार्गदर्शक बने रहे हैं. उन्होंने हमेशा नए इनिशिएटिव्स लिए हैं और हमेशा प्रयत्न किया है कि गांधी स्टडी सर्कल में नए नए विचारों को आगे लाएं. गांधी स्टडी सर्कल में अगर हम कुछ नई चीज सीखना चाहते हैं या कुछ भी हम देख के सीखना चाहते हैं किसी से भी, तो हमारे सामने सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर संजीव सर का, जो एक बहुत ही फेमस कोट है, लीड बाय एन एग्जाम्पल. वो हमें डॉक्टर संजीव सर से देखने को मिलता है. As being a Gandhian philosopher and also being a Gandhian thinker, he has always been a person, a people of those persons who live truly a Gandhian life. His lifestyle, let it be the discipline, let it be the proper timing, and let it be the guidance to us to take new initiatives. That's been a really huge enormous help for newcomers and also to all the members of us. I am happy that he has joined us towards today's meeting after taking out his time from busy schedule. I request our convener, Dr. Sanjeev sir, to kindly come and to take to this proceeding forward. Sanjeev sir. Thank you, Ankit, for your very kind words. In fact, today we all have gathered here. हम लोग इकट्ठे हुए हैं सोपान जी को सुनने के लिए. In fact, हमारी उत्सुकता है कि हमारे बीच सोपान जी हैं, और जिस व्यक्तित्व के बारे में मैंने आपसे पहले चर्चा की है हमारे गांधी स्टडी सर्कल के मंच में, तो मैं आज ज्यादा वक्त ना लेकर के मैं सोपान जी के बारे में थोड़ी बात करूंगा, और मैं चाहूंगा कि सोपान जी हमने अपने विचारों के साथ जो आज की विषय है उस पर अपनी बात रखे. हालांकि सोपान जी बहुत ही सादगी पसंद इंसान है. मुझे याद है कि जब हमने इनसे चर्चा की थी इस कार्यक्रम के लिए, तो उन्होंने तुरंत ही कहा कि किसी व्यक्ति का नाम मैं सुझाऊं क्या. तो मैंने कहा कि नहीं, इस बार तो आप इस कार्यक्रम में आपकी भागीदारी बनती है और हम चाहेंगे कि आप सर इसमें आए. तो जहां तक व्यक्ति विशेष की बात है कि सोपान जी किसी परिचय के तो मोहताज है नहीं. हम सबको पता है उनका पर्यावरण पे, गांधी दर्शन पे खासी पकड़ है. हालांकि आप जब हमसे बात करते हैं तो वो अपने आप को किसी खास परिभाषा में कैद रखना वो पसंद नहीं करते हैं, और अक्सर जब उनसे ये चर्चा होती है कि आप अपने आप को किस तरह के फ्रेमवर्क में देखते हैं, तो ना तो वो चिंतन के रूप में अपना कोई परिचय वो basically he doesn't want himself to be even described as being a thinker. ना तो वो गांधीवादी मानते हैं अपने आप को, ना पर्यावरणविद. हालांकि इन दोनों ही क्षेत्रों में हमें पता है कि उनकी खासी पकड़ है, और पत्रकारिता के बारे में तो हम ज्यादा विशेष इसमें उल्लेख करने की जरूरत नहीं समझते हैं. तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का और हर्ष का विषय है कि वो आज हमारे बीच आए हैं. और छात्रों को बस मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जिन छात्रों को रुचि है पुस्तकों में, तो उनकी एक पुस्तक जल थल मन है, जिसको पढ़ने में मुझे बहुत आनंद आया था. यह पुस्तक बहुत दिलचस्प है. इसमें विज्ञान, पर्यावरण, समाज शास्त्र, दर्शन, ये तमाम तरह के सिरों को जिस खूबसूरती से इन्होंने इसमें पुरोया है, मुझे लगता है कि यह बहुत ही विलक्षण तरीका है प्रस्तुतिकरण का. तो इस पर मैं ज्यादा बात ना करते हुए मैं सोपान जी को
आज के कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं कि वो अपने हमारे समक्ष आज के इस विषय पे गांधी की, जहां पर आज प्रासंगिकता की बात हो रही है, हालांकि आज के खास अवसर पे जब हम गणतंत्र दिवस समारोह को मना रहे हैं तो गांधी और अंबेडकर और तमाम गणमान्य लोगों का जिक्र बार बार आता है, लेकिन क्या वह जिक्र परंपरागत है या सिर्फ किसी न किसी तरह से हम आज एक अप्रोप्रिएट कर रहे हैं इस तरह के फिगर्स को जब हम इस तरह के कार्यक्रमों की चर्चा करते हैं। तो मुझे लगता है कि गांधी, अंबेडकर और अन्य जितने भी राजनीतिक विचारक हैं, पॉलिटिकल एक्टर्स रहे हैं, जिन्होंने इस संविधान को निर्मित करने में, देश को जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको लाने में जो एक जीवंत भूमिका निभाई थी, आज कहीं न कहीं एक कंट्री एक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। जब वो तमाम तरह के जो विचार जिनसे हम देश की स्वतंत्रता को समझने का प्रयास करते हैं, तो वो सारे सवालों के साथ मुझे लगता है कि सोपान जी से जैसे व्यक्ति बहुत सहजता से गांधी के, क्योंकि आज का विचार का विषय गांधी है, तो गांधी के समझ के दृष्टिकोण से वो हमारे सामने अपनी बात रखेंगे। तो सोपान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गांधी स्टडी सर्कल जाकिर हुसैन कॉलेज में, और अन्य तमाम गणमान्य हस्तियों का, दोस्तों का जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उनको भी मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सोपान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार संजीव जी। सभी को नमस्कार और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मैं ऐसा रखूंगा कि 3 बजे तक मुझे ये समेटना होगा, तो मैं लगभग कोई 20 से 30 मिनट तक कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। 2-3 छोटी छोटी बातें होंगी, और उसके बाद अगर आपके आप सबके कोई सवाल हो तो उनका जवाब देने का प्रयास करूंगा। मैं केवल इतना, मैं अभी किसी का हाथ उठा हुआ है, गलती से है या नहीं मैं नहीं जानता। आकाश, तो जो भी संचालक हैं वो तय करें। मुझे ये कहा गया था कि थोड़ी देर मैं अपनी बात यहाँ रखूं और उसके बाद सवाल जवाब। तो देखिए, पहली चीज मैं आपको जो जता के कहना चाहूंगा वो ये है कि हम में से हर किसी का मानस अपने परिवेश से बनता है। हम जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ हमारी परवरिश होती है, उसके हिसाब से हम दुनिया देखने लगते हैं, और ये इंसान की शाश्वत अवस्था है। ये हमेशा ऐसा ही होता है। हम जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ बड़े होते हैं, वहां से हम दुनिया देखना शुरू करते हैं। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हम सभी अपनी अपनी तरह अपने अपने कुएं के मेंढक हैं, और अपने अपने कुएं में जो हम देखते हैं वो हमारी सच्चाई। कुछ लोग, जो भी उसके कारण होंगे, उनके अपने काम की वजह से, उनके अपने जीवन यात्रा में या दूसरे कारणों से दूसरे लोगों के कुओं तक जाते हैं, तो वो दूसरे लोगों के कुएं भी थोड़े बहुत देख लेते हैं। इसका एक नतीजा ये भी निकलता है कि हमारे अपने कुएं से जब हम ऊपर देखते हैं तो जो आकाश हमको दिखता है वो हमारे लिए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये कोई नहीं बता सकता, कोई जितना भी आधुनिक ज्ञान विज्ञान है वो नहीं बता पाएगा। तो कोई भी सामाजिक बातचीत करने की पहली शर्त ये है कि हम अपना अज्ञान स्वीकार करें, और अपना अज्ञान स्वीकार करना विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि आप देखिए, विज्ञान में कोई भी चीज पता करने का तरीका क्या माना गया। आज जो सबसे प्रचलित तरीका है वो प्रयोग का है। प्रयोग कौन करता है? प्रयोग करने के लिए कुछ बुनियादी बातें हैं। प्रयोग वह व्यक्ति करता है जो कुछ ऐसा जानना चाहता है जो वो नहीं जानता। और केवल बात ये नहीं है कि वो नहीं जानता, वो ये जानता है कि वो नहीं जानता, इसलिए प्रयोग किया जाता है। और पुराने जमाने में लोग बहुत ही आसानी से बातचीत में ये कहते थे, राम जाने, अल्लाह जाने, दाता जाने, रब जाने, भगवान जाने।
बात बात में लोग तक बिल्कुल हम लोग जिस समय बड़े हुए हैं ये सुनने में आता था, किसी से पूछा कितने लोग आए थे, राम जाने कितने लोग थे, या वहां पे कितने रुपए बटे, अल्लाह जाने कितने रुपए बटे, ये सब सुनने में आता था। आजकल नहीं आता, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति जिसके पास मोबाइल फोन है वो सब कुछ जानता है, और इसीलिए बहुत आसानी से कोई भी बातचीत तू मैं पे उतर आती है। तो क्या होता है कि जब हम लोगों को ये बताते हैं कि हम क्या जानते हैं, तो हम सबसे अलग हो जाते हैं, और जब हम लोगों को बताते हैं कि हम नहीं जानते, तो हम सबके साथ आ जाते हैं। ये हिंदी में एक शब्द इस्तेमाल होता है संस्कृत का, विशेषज्ञ। और विशेषज्ञ को आप अगर शब्द को खोलेंगे तो विशेषज्ञ का मतलब ज्ञ लगा है अंत में, जिसका मतलब जो कुछ विशेष ज्ञान रखता है। अब आप उसमें से ज्ञान हटाइए तो विशेष बचता है। विशेष को आप अलग करेंगे तो वी भेद बताता है, और शेष जो दूसरों से अपने आप को अलग कर ले वो विशेष होता है। इसीलिए विशेषज्ञों का ज्ञान शेष के काम नहीं आता। लेकिन जब सामने वाले को गलत सिद्ध करना हो तो विशेषज्ञों का ज्ञान बहुत काम आता है। तो मैं ऐसे ज्ञान का आदमी नहीं हूं जिसमें मुझे सामने वाले को गलत सिद्ध करना पड़े या अपने आप को सही सिद्ध करना पड़े। मेरा काम सामाजिक काम है, और सामाजिक काम की पहली शर्त ये होती है कि आप अपना ज्ञान माने, कि आप ये माने कि आप किस कुएं से आ रहे हैं। हम सब अपने अपने कुएं से आ रहे हैं, और जैसे ही हम इस तरह से बात करने लगते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से बात करना आसान हो जाता है। फिर ये इसका रास्ता निकल सकता है कि जो मेरा तजुर्बा है, जो मेरा अनुभव है, उससे किसी और को कुछ मिल सके, और जो उनका अनुभव है उससे कुछ मैं पा सकूं। तो सामाजिक बातचीत का एक बुनियादी उसूल है ये कि हम पहले अपना अज्ञान स्वीकार करें, ये माने कि हम कौन से कुएं के। गांधी जी पे बातचीत जिस तरह से होती है वो, देखिए गांधी जी को गुजरे को 70 साल से ज्यादा हो चुके। तो 1944 में गांधी जी के जन्मदिन के समय एक रजिस्टर में अल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा गया था कि वो कुछ लिख दे उनके जन्मदिन के अवसर पे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा था कि आने वाली पीढ़ियां ये विश्वास नहीं कर पाएंगी कि इस तरह का आदमी कोई हाड़ मास में घूमता था, क्योंकि उस समय जब गांधी जी जिंदा थे तब अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे आदमी को लग रहा था कि इनके बाद ही लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आदमी कैसा। तो अब आप सोचिए कि उनको गुजरे को पीढ़ियां गुजर चुकी, हर कोई अपने अपने कुएं से जो गांधी जी का चित्र दिखता है उसके हिसाब से अपना विशेष ज्ञान सामने रखता रहता है। और इसका एक असर ये हो गया है कि सामाजिक बातचीत में गांधी जी बहुत ही उबाऊ विषय बन चुके हैं। गांधी जी का नाम इस्तेमाल किया जाता है दूसरों पे नैतिकता का बोझ डालने के लिए, और अपने जीवन में उसको कम से कम इस्तेमाल करने। तो लोगों को लगता है गांधी जी ऐसे हैं, और खासकर नई पीढ़ी के लोग जो नए तरह से नए जमाने में बड़े हो रहे हैं, ऐसे जमाने में जब सब कुछ जानना जरूरी है, जब ये मानना बहुत जरूरी है कि नहीं हम जानते हैं, हमने हमारे पास मोबाइल, बताओ क्या नहीं पता, मैं भी मोबाइल फोन पे ढूंढूं। जबकि कोई भी किसी भी दुनिया की ज्ञान परंपरा को देख लीजिए, किसी भी अदब को देख लीजिए, इल्म का काम करने वालों में सबसे पहली बात ये मानी गई है कि आप में विनम्रता होनी चाहिए। जो आप नहीं जानते उसके लिए सम्मान होना चाहिए। तो जो सबसे बड़ी बात गांधी जी से हम लोग अपने जीवन में सीख सकते हैं, अपने आप को सुखी करने के लिए, कोई दुनिया पे एहसान लादने के लिए नहीं, दुनिया को ठोक पीट के बेहतर बनाने के लिए नहीं, अपना जीवन अच्छा करने। तो अपना जीवन अच्छा करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि सब जानने का बोझ अपने माथे से उतार के रखते। क्योंकि गांधी जी के जीवन से आपको समझ में आता है कि वो बार बार ये मानते हैं कि सभी तरह का ज्ञान एक परिवेश में होता है,
हर तरह का ज्ञान एक परिवेश से, जो उस परिवेश से नहीं है उसको वो बात समझने में मुश्किल। मैं जाकिर हुसैन कॉलेज में नहीं पढ़ा, जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये मैं आपको नहीं बता सकता। इसका मतलब ये नहीं कि जाकिर हुसैन कॉलेज ही का कोई मतलब नहीं, इसका मतलब ये कि मैं नहीं जानता। तो एक सामाजिक बातचीत में ये मानना कि हम नहीं जानते, उसमें एक फायदा तो ये होता है कि आपको लोगों से बात करना आसान हो जाए। किसी को ऐसा इंसान जो अपनी बात ही ना कहता रहे सबके सामने, जो नहीं जानता उसको ईमानदारी से रखे, उससे लोगों को बात करने में दिक्कत नहीं आती। और ये सामाजिक बातचीत का जरूरी हिस्सा माना जाता है। केवल सामाजिक नहीं, शास्त्रीय विद्वान भी अच्छा वही माना जाता है जिसमें विनम्रता, जिसे अपने शास्त्र की ठीक पता हो, अपने शास्त्र के बारे में ठीक पता हो, और वो दूसरों के शास्त्र का भी सम्मान करना जानता हो जिन्हें वो नहीं जानता। तो दूसरी बात जो गांधी जी के जीवन से आप लोग खासकर सीख सकते हैं, 3 मोटी मोटी बातें मैं कहूंगा। पहली तो ये न जानना, और न जानते हुए प्रयोग करना ताकि हम जान सकें। गांधी जी का जीवन, उनकी आत्मकथा का शीर्षक ही सत्य के प्रयोग है। सत्य के प्रयोग कौन करता है? जो ये पहले स्वीकार करे कि वह नहीं जानता, और वो जानने के लिए जो मेहनत करने जरूरी है वो मेहनत करने के लिए तैयार है। दूसरी बात, जब आप अपने कुएं से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब आप जाके किसी और के कुएं से दुनिया को देखना तय करते हैं, तो आप अपने आप से थोड़े बड़े हो जाते हैं। यानी आप जो जानते हैं अपने जीवन, अपने अनुभव, अपने अध्ययन से, जब आप किसी दूसरे की आंख से देखना सीखते हैं तो थोड़े बड़े हो जाते हैं। ये सबक हर कलाकार को सीखना पड़ता है। इसीलिए मुझे जो 2 बहुत उपयोगी तरीके दुनिया को देखने के लगते हैं, वो एक तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का है और दूसरा कला का है। दोनों तरीके जीवन के साथ चलते हैं। कला में सबसे जरूरी बात यह होती है कि क्या आप अपने आप को किसी और के जीवन में डाल सकते हैं, किसी और की आंख से देख सकते हैं। तो इसीलिए जैसे अभिनय करना है, एक्टिंग है, तो अभिनय में पहली चीज ये होती है कि आपको ये सिखाया जाता है कि आप किसी और को कैसे प्ले करें। अगर आप पुरुष हैं तो क्या आप महिला का किरदार निभा सकते हैं? अगर आप महिला हैं तो क्या आप किसी पुरुष का किरदार निभा सकते हैं? और जब आप किसी और का किरदार निभाने की बात करते हैं, तब आप अपने छोटे से कुएं से थोड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि आप किसी और के कुएं से दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। और ये कमाल चीज ये है कि जैसे जैसे दुनिया में जानकारी बढ़ रही है, ये और कम हो रहा है। जैसे जैसे हमारे पास जानकारी और आ रही है, बजाय इसके कि हम अपने से अलग लोगों से मिले जुले बात करें, हम अपने आप को और छोटा बना रहे हैं। ये मेरी भाषा बोलता है कि नहीं, ये मेरे धर्म की है कि नहीं, ये मेरी जात का है कि नहीं, इसका ये उसी खिलाड़ी को पसंद करता है कि नहीं जिसको मैं पसंद करता हूं, है ना। ये छुटभैयापन इंसान की मिट्टी में है, और इससे छूट वही पाता है जो दूसरों की आंख से दुनिया देखना शुरू करे। गांधी जी की जिंदगी, ये जो बहुत सारे तर्क चलते रहते हैं गांधी जी पे, कोई और इंसान नहीं है आधुनिक काल का जिसपे हर साल इतनी सारी नई किताबें ना लिखी जाए, इतने सारे नए रिसर्च पेपर ना लिखे जाए, इतने तरह तरह के विषयों पे ना लिखे जितने गांधी जी पे लिखे। गांधी जी की तुलना इसमें केवल ईसा मसीह से होती। इतनी सामग्री किसी और व्यक्ति, आधुनिक जीवन पे तो कोई नहीं है जिसपे इतनी बड़ी संख्या में। तो आप पाएंगे कि शास्त्रीय विद्वानों में गांधी जी में रुचि लगातार बढ़ती चली जाती, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ रहा है कि इस आदमी की पूरी जिंदगी बहुत क्रिएटिव, बहुत रचनात्मक और बहुत मजेदार है। लेकिन सामाजिक जीवन में गांधी जी उबाऊ और परोपदेश कुशल बहुतेरे की तरह मान लिए गए।
क्योंकि ऐसा हर व्यक्ति जो दूसरे को नैतिकता का उपदेश तब देना चाहता हो जब वो खुद नहीं करना चाहता, वो गांधी जी की पीठ से बंदूक चलाता है। और हर व्यक्ति जो अपने ज्ञान को दूसरों के ज्ञान से बड़ा बताता है, उसमें ये इच्छा भी रहती है गांधी जी पे एक पत्थर मार के, उससे सुविधा रहती है। तो ये हमारे यहाँ सामाजिक बातचीत में ये समस्या आ रही है। और गांधी जी का जीवन अगर आप देखते हैं तो 1893 में जब वो विदेश जाते हैं तब 23 साल के युवक हैं जो जिनका करियर, नौकरी वगैरह सब विफलता की ओर जा रहा है। तब जब परिवार ने बड़ा जोखिम उठा के पैसा खर्च किया है कि विदेश में पढ़ाई करें इत्यादि, 23 साल की उम्र में फिर वो विदेश जाते, जहां वो रहते हैं दक्षिण अफ्रीका में। वहां उनका अपनी जाति का, अपनी कौम का, अपने भाषा का, अपने जात का, अपने बहुत कम लोग हैं जो उनके हिंदुस्तान के ही हैं, उनमें भी उनकी अपनी जात का कोई नहीं। और वो वहां अकेले हिंदुस्तानी हैं जो पढ़े लिखे वकील हैं। अब होता क्या है कि वहां से उनका जीवन खुलना शुरू होता, तो तरह तरह के लोगों के साथ। तो इसीलिए गांधी जी को लगने लगा था कि एक ऐसा मुल्क बन सकता है जिसमें तरह तरह के लोग रह सकते हैं, क्योंकि गांधी जी का जीवन जब फूल की तरह खिलना शुरू होता है तब वो ऐसे ही लोगों के साथ हैं जो उनके अपने नहीं, सभी पराये हैं। और कुछ सालों में वो सब पराये उनके अपनों से ज्यादा पक्के अपने हो जाते। अब जैसे महिलाओं पे देखें तो ज्यादातर लोगों को ये अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि गांधी जी को इतना उबाऊ बना के बताया जाता है, लेकिन गांधी जी के आश्रमों में बहुत इश्क लड़ाया जाता था। न जाने कितने लोगों की शादियां उन्होंने करवाई। तो ऐसे में एक दक्षिण अफ्रीका में हेनरी पोलैक नाम का युवक उनको एक शाकाहारी रेस्तरां में मिलता है। तो उससे बात करने लगते हैं तो पता लगता है कि यहूदी था वो, और उसके पिता ने, जो काफी धनवान उद्योगपति थे, मतलब अपना व्यापार था, तो उन्होंने उसको दक्षिण अफ्रीका इसलिए भेज दिया था क्योंकि हेनरी को एक ईसाई लड़की से मोहब्बत हो गई, और माँ बाप नहीं चाहते थे कि वो ईसाई लड़की से ब्याह करे। तो गांधी जी की हेनरी पोलैक से दोस्ती होती है। फिर दोनों, हेनरी और मिली के माता पिता को चिट्ठी पत्री लिखना शुरू करते हैं, पटाते हैं दोनों को, और दोनों की शादी करते हैं। अब शादी हो जाती है, ये लोग आके दक्षिण अफ्रीका में इनके घर में रहने लग जाते हैं। अब ये वो वक्त है जब काली चमड़ी के और गोरी चमड़ी के लोग सड़क पे साथ नहीं चलते थे। ऐसे वक्त में गांधी परिवार के घर के भीतर एक गोरा दंपत्ति रहता है जो घर के काम करता है, जो बच्चों को पढ़ाता है, जो बर्तन धोने से लेकर कपड़े धोने से लेकर सारे घर के काम जैसे हमारे परिवारों में किए जाते हैं वैसे करते। लेकिन मिली ग्रैम ऐसी वैसी कोई मतलब हल्की फुल्की चीज नहीं है बहुत छोटी सी। वो 18 साल की लड़की है जो इंग्लैंड में सफ्रेजेट मूवमेंट से निकल कर आ रही है। सफ्रेजेट मूवमेंट इसके लिए था कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिले। अब खाना साथ में खाते हैं ये लोग, एक टेबल पे बैठते हैं, और वो 18 साल की मिली ग्रैहम गांधी जी को चुनौती देना शुरू कि तुम हिंदुस्तानी पुरुष महिलाओं के साथ बहुत खराब व्यवहार करते। अब गांधी जी भी इसी समाज से निकले, तो वो पहले वही सब बताते हैं जो सब लोग कहते हैं तुम हमारी संस्कृति को नहीं जानती हो, हम लोग अलग होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। मिली ग्रैहम नहीं मानती उनकी बात। मिली ग्रैहम किसी से डरने वाली लड़की नहीं, और उसकी उम्र 18 साल। तो अब गांधी जी को भी पता है कि उसका पूरे परिवार से प्यार है, सम्मान है, घर के सारे काम करती है, सबसे उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। धीरे धीरे गांधी जी को समझ में आने लगता है ये लड़की बात तो ठीक कह रही। और यहां से आप पाएंगे गांधी जी का सामाजिक जीवन बड़ा होना शुरू, क्योंकि जब तक बड़ी संख्या में महिलाएं सत्याग्रह में नहीं आई, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह कामयाब। जब इन लड़कियों के साथ सब कम 17 साल की सोनिया श्लेजेल, गांधी जी ने लिखा है कि उसमें इतनी हिम्मत थी कि 17 साल की लड़की रात के 2 बजे साइकिल पे अंधेरे में निकल जाती थी काम से। और वो कहते, ये उन्होंने लिखा है कि
किसी भी पुरुष से उसकी हिम्मत और उसका साहस कम नहीं था। तो अब क्या होता है, अब पोरबंदर में पैदा हुआ, राजकोट में बड़ा हुआ एक लड़का ऐसे लोगों के साथ रहता है जो उसके जैसे नहीं है, उससे अलग है। और हम सब उन लोगों से दूर भागते हैं जो हमारे जैसे नहीं, जो हमारे जैसे दिखते नहीं है, जिनकी जुबान हम जैसी नहीं है, जिनका धर्म ईमान हम जैसा नहीं है, जिनकी जात हम जैसी नहीं है। हम अपने जैसे लोगों में, स्कूल में शुरू हो जाता है ये, कौन सी कुर्सी पे बैठेंगे, जो हमको ठीक लगते हैं उनके साथ बैठते हैं। बस में रुमाल उमाल भी इसीलिए रख देते हैं कि अपने दोस्तों के साथ बैठे, क्योंकि इंसान की मिट्टी है। हम दुनिया को अपने और पराये में बांट लेते हैं, ये अपना है, ये पराया। गांधी जी का जीवन जो बड़ा होता चला जाता है, वो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि आप अगर दुनिया को ये छोटे अपने पराये में ना बांटे और परायों के साथ ऐसे मिले जुले कि वो अपने हैं, तो आप कहां पहुंच सकते हैं। वहां ना उनकी जात का कोई, ना उनके अपने वैष्णव धर्म वाला कोई, ना सभी तरह के लोग। और उनका जो आश्रम बनता है वो इसीलिए लोगों को समझना इतना कठिन लगता है, जो लोग बिना पढ़े समझे। मैं पाता हूं बहुत से लोग बहुत सी बातें बताने की कोशिश करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि जो गांधी जी के आश्रम बने वो इसलिए बन पाए कि उसमें सभी लोगों को एक साथ प्यार से रहने की जगह बनाई गई, इसीलिए सभी तरह के लोग वहां रह सकते। और दूसरा, ये इसलिए नहीं करने लायक है कि ये दूसरों पे कोई एहसान लाद दे, ये अपने लिए बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि अगर आप दूसरों के कुओं से जा जाके दुनिया देख सकते हैं, तो आप अपने आप से लगातार बड़े होते चले जाते हैं। ये बात हमारे यहाँ तो प्राचीन अध्यात्म में खूब कही गई है। दुनिया के सभी संस्कृतियों में, सभी अदबों में आपको ये बात मिल जाएगी कि गहरा व्यक्ति कौन होता है। गहरा व्यक्ति वो नहीं होता जो लोगों को, जो अपना जानता है उसका अहंकार से बताए कि नहीं तुम गलत हो, मैं ही जानता हूं। हो सकता है कुछ मैं जानता हूं, कुछ कोई और जानता है, कुछ कोई और जानता है, हम सब कुछ जानते हैं। तो दूसरी बात, पहली बात मैंने आपसे कहा कि अपना ज्ञान स्वीकार करना, और दूसरा हमेशा आप जो जानते हैं उसको दूसरे जो जानते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानना। यानी अपनी चेतना के केंद्र में दूसरों को रखना। मैं ये जानता हूं, मैं ये जानता हूं, मैंने ये पढ़ा है, मैं इससे मिला हूं, मैंने ये देखा है। थोड़ी देर में बाकी लोग कहते हैं छोड़ो यार इसको, ये मैं के अलावा कुछ जानता नहीं। और जो लोग छोड़ के जाते हैं वो आपको बताते नहीं है कि आप गलत कैसे हैं, वो चुपचाप चले जाते हैं और उसमें आप गरीब हो जाते हैं, क्योंकि कुछ अच्छा आपको भी उनसे मिल सकता है। लेकिन वो पाने की बजाय, क्योंकि आप अपनी बात उनके माथे पर डालना चाहते हैं, तो ये कोई सामाजिक व्यवहार का तरीका नहीं, किसी भी संस्कृति में नहीं रहा है। तो इसीलिए ये जो अपने पराये का छुटभैयापन है जो इंसान की मिट्टी में, इससे बाहर निकलना जरूरी है। क्योंकि दुनिया जिसने भी बनाई है बहुत बड़ी है, बहुत सुंदर है, उसमें जानने समझने लायक बहुत सी चीज। तो ये बात दूसरी है। और तीसरी बात, जो आखिरी बात होगी इसकी, क्योंकि सवाल जवाब के लिए समय रहे, वो ये है कि गांधी जी आधुनिकता के सबसे मौलिक आलोचकों में से हैं। क्योंकि 1909 में उन्होंने ये समझ लिया था कि जिसे तरक्की और औद्योगिक विकास वगैरह कहा जाता है, ये कबाड़ा करेगी, उन्होंने तब समझ लिया था। और 2022 में हम लोग आ गए हैं। 1992 से सभी देशों ने मिलकर 3 संधियां की थी, ये जानते हुए कि हम अपना अस्तित्व खतरे में डाल रहे हैं। रियो में 1992 में 3 संधियां हुई थी। एक जलवायु परिवर्तन को लेकर है, दूसरी जीवन की विविधता को मिटने से बचाने के लिए है, और तीसरी रेगिस्तान को रोकने के लिए। तीनों संधियां ये मान के की गई थी कि
हमारा आर्थिक विकास दुनिया का कबाड़ा कर रहा है, हमारा कबाड़ा कर रहा है। ये बात 1980 के दशक में साफ हो गई थी और तब से अब तक विज्ञान एक ही तरफ जा रहा है, साफ। और आप पाएंगे सारे जो हमारे यहाँ राजनीतिक चूरण दिखते रहते हैं, उनमें किसी के पास ये जो सबसे बड़ी समस्या है इसका कोई काट नहीं है, किसी के पास नहीं। हर कोई ज्यादा ताकत चाहता है, हर कोई ज्यादा कोयला जलाना चाहता है, हर कोई ज्यादा पेट्रोल जलाना चाहता है, क्योंकि उससे ताकत मिलती है। कोई ये मान नहीं रहा है कि इससे हम उस शाखा को काट रहे हैं जिसपे हम बैठे। और ये बात गांधी जी ने 1909 तक समझ ली थी। आप इसीलिए हिंद स्वराज लोगों को इतनी कंफ्यूजिंग किताब लगती है, क्योंकि लोग सुविधाजनक राजनीतिक चूरण ढूंढते जो हाजमे में आसान हो, और उसमें ऐसा कुछ भी सुविधाजनक चूरण नहीं। वो बहुत बड़ी सच्चाई बहुत छोटे से में और सहज सामाजिक भाषा में सामने। हम लोगों की तुलना में जो यहाँ पे छात्र हैं वो कहीं लंबे जिएंगे। आप लोगों को दुनिया में उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जो हम नहीं कर पाए, जिन्हें हमें नहीं करना पड़ेगा। ये पक्का है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, मौसम का ढर्रा बदल रहा है, क्योंकि जलवायु बदल रही है। जो हम देख रहे हैं वो जलवायु परिवर्तन नहीं है। जलवायु परिवर्तन हमें देखने में नहीं आता, लेकिन उसका असर मौसम में दिखता है। तो आप लोग जब पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करेंगे तो आपको जितना सहज और जितना गहरा सामाजिक विचार गांधी जी से मिलेगा, उतना बहुत दूसरे लोगों से मिलने वाला नहीं। मेरे ख्याल से 2:45 बज गया है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो मैं कोशिश करूंगा कि जवाब दे सकूं। न दे पाया तो आपसे माफी मांग लूंगा। मुझे आप लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए बुलाया, आप सबसे बात करने का मौका दिया, आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जिन तथ्यों को छुआ, बहुत सारे नए आयामों को आपने स्पष्ट किया है और गांधी जी के नए पहलू को अपनी तरह से दृष्टिकोण में डाला है कि किस तरीके से उन्होंने महिलाओं के प्रति और उन्होंने उत्सुकता जगाई कि वो भी आए और पार्टिसिपेट करें। जरूरी इन सभी तर्कों से कहीं न कहीं प्रश्न उत्तर कुछ हमारे मित्रगणों के बीच में होगा और उन्हीं से प्रश्न उत्तर को लेने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ तन्मय को। तन्मय कृपया आए और यहाँ से प्रश्न उत्तर सेशन को कंटिन्यू करें। तन्मय। धन्यवाद अंकित। धन्यवाद सर। यहाँ हमारे पास एक पहला प्रश्न आ चुका है और वो प्रश्न है सौमित्र चक्रवर्ती के द्वारा। वे पूछती हैं कि वाज गांधी जी टोटली अगेंस्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन? क्या गांधी जी आधुनिक समाज के पूरे विपरीत थे? आप चाहें तो हिंद स्वराज बहुत पतली सी पुस्तिका है, आप खुद पढ़ सकते हैं इसको। लेकिन उसमें मोटा मोटा जो बात है वो, अब मॉडर्न सिविलाइजेशन इसमें आ जाएगा कि आप किसको मॉडर्न सिविलाइजेशन मानते हैं, वो किसको मानते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल मॉडर्निटी है उसको गांधी जी स्वीकार नहीं करते। उनका कहना था कि ये मूलतः राक्षसी, ये सुविधा दिखाती है लेकिन ये खाती भीतर से। और उसके मतलब उसका तो सबसे बड़ा प्रमाण जलवायु परिवर्तन है। इसीलिए जब इन्वायरमेंट नाम का शब्द या पर्यावरण नाम का कोई शब्द चलता भी नहीं था, उस समय ये सोच लेना कि इसका नुकसान क्या होगा, ये आपको बता देता है कि गांधी जी की दृष्टि में कितनी दूर तक देखने की क्षमता थी। और इसका 30 साल से सभी देशों ने इस पे न जाने कितनी तरह की बातचीत की है। दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी इन विषयों पे बात करने के लिए हर साल मिलते हैं। आज तक हमारे पास इस समस्या को कम करने का क्या हमने किया ये दिखाने को कुछ भी नहीं। तो जो इंडस्ट्रियल मॉडर्निटी की क्रिटिक है गांधी जी की, उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही आपके सामने है। अगला क्या है, हाउ कैन वी ट्रूली इनकॉर्पोरेट नॉन वायलेंस और अहिंसा इन आवर लाइफ। अहिंसा इतना आसानी से समझने वाला विचार नहीं है जितना बहुत से लोग अपनी सुविधा में बना देते हैं। बहुत पुरानी बातचीत है अहिंसा की। अहिंसा की बात हमारे प्राचीन दर्शन में खूब की गई है।
उसमें नास्तिक परंपरा के दर्शनों में भी की गई है, आस्तिक परंपरा के दर्शनों में भी की गई है। बहुत सी सामग्री जो आज हम जानते हैं वो नास्तिक परंपरा से, जो जैन और बौद्ध दर्शन से आती है। अहिंसा उस समय हर किसी के लिए नहीं मानी जाती थी। अहिंसा जो भिक्षु थे, जो संन्यास लेते थे, उनके लिए यह नियम था कि वो अपने भोजन के लिए भी हिंसा नहीं करेंगे। इसीलिए वो भिक्षाटन से भीख मांग के अपना भोजन चलाते थे, क्योंकि जो गृहस्थ है उसके लिए हिंसा करना उचित माना गया था। क्योंकि एक तरह की हिंसा, देखिए प्रकृति में दो तरह की कारणों से हिंसा सबसे अधिक होती है, भोजन और प्रजनन के लिए। इसके अलावा जीव हिंसा करना नहीं चाहते। अगर कोई मांसाहारी जीव है, कोई हिरन है या लकड़बग्गा है या इस तरह के शेर है, अगर शेर का पेट भरा हुआ है तो हिरन उसके पगल से होके निकल जाए। उसको भी पता है कि शेर उस पर हमला नहीं करेगा। दूसरा, अहिंसा काम कैसे करती है इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो मांसाहारी जीव हैं वो तो वनस्पति का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर मांसाहारी जीव नहीं होंगे तो शाकाहारी जीव सारे वनस्पति खा जाएंगे। तो ये जो इकोलॉजिकल बैलेंसेस ऐसे ही काम करते हैं। और आज हमको अहिंसा समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी जो हमारा आर्थिक विकास दुनिया को भीतर से खा रहा है, हमारी दुनिया को, और बहुत तेजी से खा रहा है। तो हमारी जो आर्थिक तरक्की की हिंसा है वो इतनी बढ़ चुकी है कि किसी इंसान की कभी भी हिंसा करने की ऐसी क्षमता नहीं रही जितनी आज आ रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पैदा जो नया ज्ञान हुआ उसने इंसान की फितरत बदल दी। इंसान आज भी उन्हीं चीजों में फंसा हुआ है जो हम बहुत पुराने ग्रंथों में देखते हैं। इसलिए आज अगर आप उपयोगी तरीके से अहिंसा को समझना चाहते हैं तो आपको पर्यावरण की दृष्टि से समझना, और वो सामग्री पहले थी नहीं, वो सारी सामग्री। आपने वक्तव्य के लिए, आपके अनुसार गांधी जी का महिला शक्ति के कारण महिला सशक्तिकरण मॉडल किया है और आप उसकी तरह देखते हैं। इसमें कोई सवाल मुझे दिखा नहीं। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, जी, वो ये पूछना चाहते हैं कि गांधी जी का महिला सशक्तिकरण का क्या मॉडल है? कोई ऐसा मॉडल नहीं है। गांधी जी के भाषण है नमक सत्याग्रह के समय के, जिसमें वो जाके ये आंदोलन कोई भी सफल नहीं होते जैसे हुए अगर बड़ी संख्या में महिलाओं का प्रशिक्षण नहीं होता। बहुत बड़े बड़े संस्थान बनाए गए थे ताकि महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भागीदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया। तो उसका एक तो उदाहरण कुछ इस तरह के भाषण भी हैं जहां गांधी जी बात कर रहे हैं, महिलाओं से कह रहे हैं कि तुम्हें चूल्हे चौके में बंद होने से निकालने में बहुत मेहनत लगी है, अब फिर जाके बंद मत हो जाए, है ना। ये सब सामाजिक राजनीतिक जीवन में सहभागिता होनी चाहिए। और आप देखिए जो गांधी जी के पहले की कांग्रेस की आप फोटो देखेंगे और बाद की देखेंगे, बड़ी संख्या में महिला नेता दिखने लगेंगे उस समय के। दूसरा, लोगों को समझ में नहीं आता, खादी को लेकर कई तरह की बात होती है। खादी का पैसा किसके पास जाता? साधारण महिलाओं के पास जाता। जिनके पास नमक का पैसा किसके पास? साधारण महिलाओं के पास। आज हम ऐसे समय में आ गए हैं जहां आर्थिक तरक्की तभी मानी जाती है जब धनवान और धनवान हो और गरीब और गरीब। तो गांधी जी जिस टेक्नोलॉजी और जिस इकोनॉमिक्स की बात करते थे वो साधारण लोगों की टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स है, जो इतनी आकर्षक नहीं लगती देखने में। मतलब उसमें कोई बहुत ताकतवर बड़ी मशीनें नहीं दिखती, छोटी मोटी चीजें होती हैं, क्योंकि वो घरेलू तरीका है बात का। हम जिस समय में रहते हैं उसमें घरेलू चीजें छोटी मानी जाती हैं,
अब लोग बात करते हैं महिलाओं को वर्क फोर्स पे लाना है। हर संस्कृति में सबसे अच्छा भोजन सबसे पहले पुरुषों को दिया जाता है, फिर महिलाओं को दिया जाता है। इसके बावजूद हर संस्कृति में औसतन महिलाओं की आयु पुरुषों की तुलना में 5 से 6 साल ज्यादा होती। लगभग हर संस्कृति में महिलाएं ज्यादा काम करती हैं पुरुषों की तुलना में, लेकिन इकोनॉमिक्स वो ये मानती नहीं है कि ये काम है, घर का काम नहीं होता, क्योंकि उसका कोई इवैल्यूएशन ही नहीं है। तो ये महिलाओं को डिवैल्यू करने का तरीका है। और जो इकोनॉमिस्ट ये करते हैं वो खुद अपनी मां को भूल जाते हैं। हाँ, हर बच्चा जो बड़ा होता है उसमें किसी एक महिला का, खासकर एक परिवार का, एक समाज का बहुत सारा निवेश होता है, बहुत मेहनत लगती है एक बच्चे को बड़ा करने में। और वो ज्यादातर मेहनत या तो मां करती है, परिवार की दूसरी महिलाएं करती है। इकोनॉमिक्स ने उसका सारा मूल्य खत्म कर दिया। और फिर होता है कि महिलाओं को वर्कफोर्स में कैसे लाया जाए? वर्कफोर्स में तो है ही महिलाएं सबसे ज्यादा। दिक्कत यह है कि आपने अपना चश्मा गलत लगा रखा। तो ये जो घरेलू टेक्नोलॉजी की बात है, वो कुल मिला के उन इंडस्ट्रियल मॉडर्निटी जिस तरह की चीज की वैल्यू ज्यादा बढ़ा के बताती है और जिस चीज की वैल्यू कम करती है, उसको गांधी जी स्वीकार नहीं करते। और क्या सवाल लिया जाए? सर, नेहा जी अपना सवाल पूछना चाहती हैं। पूछे। नमस्ते। जी बताएं। नमस्कार। है दुनिया को देखने का, परखने का, तो हम किसी और के नजरिए या उसके कुएं से दुनिया को कैसे देख सकते हैं? उसके कुएं में जाइए। ऐसे कम से कम कुछ दोस्त होने चाहिए जो आपके अपनी भाषा, अपनी जाति, अपना धर्म, अपना लिंग, अपना आर्थिक तबका उससे अलग हो। अगर अलग अलग तरह के लोगों से आप दोस्ती करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको अलग अलग लोग कैसे रहते हैं, कैसे दुनिया देखते हैं, इसका अंदाजा लगेगा। तो सर, मेरा एक और सवाल था। आपने कहा कि गांधी जी को जीसस से कंपेयर किया गया है, तो उन्हें किस बेसिस पे कंपेयर किया गया है और इतना क्यों कंपेयर किया गया है? मैंने आपने शायद, हो सकता है उस समय आप सुन ना पाई हूं, मैंने आपसे कहा था किसी और मनुष्य पे इतना साहित्य हर साल नहीं आता। इतनी बड़ी संख्या में किताबें, शोध पत्र, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स जितने गांधी जी से जुड़े हुए होते हैं, सब तरह के, उसमें ऐसे भी हैं जो गांधी जी के बिल्कुल भक्त हैं, उसमें ऐसे भी हैं जिनको गांधी जी को गाली दिए बिना खाना नहीं पचता, मतलब उनको अपच हो जाती है जब तक वो 4 गाली ना दे दे। ऐसे भी हैं, हमारे ही लोग हैं सर। तो जब आप वो देखेंगी कि इतनी बड़ी संख्या में जो साहित्य किस व्यक्ति पे पैदा होता है, तो आपको मतलब उसमें गांधी जी और जीसस दोनों का नाम बार बार ऊपर की तरफ आता है, जिन पे इतनी स्कॉलरशिप इन्वेस्ट होती है। कोई और सवाल? थैंक यू सर। एक सवाल मेरा था। मेरी आवाज आ रही? जी आ रही। सर, एक कोशिश मतलब गांधी जी को डिलेजिटिमाइज करने की जा रही है, चाहे फेक हिस्ट्री हो या फिर अहिंसा जैसे जो टर्म है उनको इस तरीके से पुराना बता के जो ये कोशिश हो रही है, और ये मतलब पहले तो फ्रिंजेस थे और अभी ऐसा लगता है कि एक बड़े स्तर पे ये चीजें मतलब कोशिश की जा रही है कि उनके थॉट्स को डिलेजिटिमाइज कर दिया जाए, कि उनको बच्चे क्यूरियोसिटी ही ना है कि उनको पढ़ा जाए। तो इस पे मतलब क्या विचार है आपके? थोड़ा सा जानना चाहूंगा। धन्यवाद। मतलब आपका सवाल नहीं समझा मैं। ये हो रहा है, ये तो ठीक है, मतलब ये तो जब गांधी जी जिंदा थे तब भी होता था, तभी तो उनकी हत्या की गई। जैसे ये इंटेंसिटी इसकी बढ़ रही है, तो इस पे मतलब गांधीयन विचारधारा के जो गांधीयन विचारधारा जिनकी हो वो लोग बता सकते हैं। मैं कोई
मुझे गांधी जी ने अपनी डिफेंस के लिए अपॉइंट नहीं किया. आई एम नॉट द डिफेंस काउंसिल फॉर मोहनदास करमचंद गांधी. मैं आपको ये बता रहा हूं, मुझे जितना फायदा गांधी जी के जीवन और विचार से हुआ है, उतना फायदा किसी दूसरे इंसान के जीवन और विचार से नहीं हुआ. ठीक है, ये मैं आपको बता सकता हूं, है ना. दूसरा, आप क्या मानते हैं वो आपके ऊपर है कि भाई आप अपना कितना फायदा चाहते हैं, है ना. आपका फायदा तो आप ही सोचेंगे ना. अगर आप अपनी मदद नहीं करना चाहते तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता. दूसरा, ये बहुत हमारे समय का जो सबसे बड़ा अंधविश्वास है वो राजनीति है. हमारे समय के सबसे बड़े अंधविश्वास धर्म से नहीं आते, राजनीति से आते हैं. जो ये बताते हैं, हर तरह का राजनीतिक विचार हमको ये बताता है कि जब वो सत्ता में आएगा तो वो सब ठीक कर देगा. और ये इतनी नई बात नहीं है. आप साम्राज्यों का इतिहास पढ़ेंगे, साम्राज्यों का इतिहास जो हम जानते हैं वो लगभग 6000 साल का है. हर साम्राज्य ने यही कहा है. हर साम्राज्य ने, हर राज्य ने ऐसे ज्ञान को सामने रखा है जो उसके लिए सुविधाजनक हो. और इतने बड़े बड़े साम्राज्य होके मिट गए, आज आप उनका झंडा भी नहीं बता सकते. उनका स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस कब था आप भी नहीं बता पाएंगे. और हो सकता है वो साम्राज्य वहीं रहे हो जहां आज आप बैठे. तो इसमें जो भेद करना है सबसे जरूरी, उपयोगी भेद बता रहा हूं मैं आपको. सबके अपने अपने विचार हैं कि दुनिया किसने बनाई है, क्यों बनाई. ठीक है, कोई कहेगा भगवान ने बनाई है, कोई कहेगा अल्लाह ने बनाई है, कोई जिसका जैसा विश्वास है. कोई कहेगा एवोल्यूशनरी बायोलॉजी ने बनाई है. अब देखिए, चाहे आप विश्वास की आंख से देखें, चाहे एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से देखें, तो आपको पता लगेगा कि इंसान ने इंसान को नहीं बनाया. जिसने इंसान को बनाया है उसने इंसान को समाज में रहने वाला जीव बनाया. और हम अकेले नहीं है जो समाज में रहते. वनस्पति भी समाज में रहते. ऐसे न जाने कितने जीव जंतु हैं जो समाज में रहते. तो समाज उस तरह से नैसर्गिक अवस्था है, लेकिन किसी दूसरे जीव के राज्य नहीं होते. यानी सभी राज्य और साम्राज्य इंसान के बनाए. तो मैंने कहीं शेर सुना था पहले कि हम इंसान की बनाई हुई चीज नहीं खाते. हम आम के मौसम में मिठाई नहीं खाते. तो उसमें कहने का मतलब ये था कि आम जिसने दुनिया बनाई है उसने आम बनाया, मिठाई तो इंसान ने बनाई है. इंसान के हाथ की चीज क्यों खाए. तो हमारी जो मूल अवस्था है वो समाज है. इसीलिए कोई भी राजनीतिक नारा कभी भी बहुत लंबा नहीं चल पाया, क्योंकि राज्य मूल नहीं है. स्टेट इज नॉट एसेंशियल टू ह्यूमन लाइफ, बट सोसाइटी इज एसेंशियल. तो ये मतलब मैं इसलिए मुझे इसको लेके कोई चिंता नहीं होती कभी भी कि बहुत झूठ चलता है गांधी जी के नाम पे. लोग अपनी सुविधा के लिए चलाते हैं. माओवादियों ने चलाया, हिंदुत्ववादियों ने चलाया, सबने चलाया. उनके लिए भी अपनी शुभकामनाएं हैं, अपने लोग हैं, है ना. जी, कोई और सवाल. I have a question if I may ask. जी हाँ. Yeah, sir, I firmly believe that Gandhiji was an extremely racist individual early in his life, but gradually and he decisively got away with it since he became a public speaker or a public figure. So what are your thoughts on that? And also, don't you think that Gandhiji was just a mobilizer in the freedom struggle of India? Rather, the entire work was already done in 1857. And gradually the independence was about to come, but Gandhiji actually just was a mediator between the authorities and the people. Since I think you're wrong. Sorry? I think you're wrong. I might be, sir. But this is what I... you're free to believe what you want. Yeah. You asked me a question. Yeah. I'm telling you you're wrong. I could be wrong in telling you that you're wrong, but that's okay. I mean, I'll go by what I have read and understood. And you don't have to
go to my, I don't know how much you've read about this. There is, the way you're talking about this, I think you've read too many WhatsApp messages. If you just focus a little bit, okay, you don't have to do anything. Just look at the photographs of the annual conventions of the Congress before Gandhiji and after Gandhiji. You'll realize the difference. The Congress before Gandhiji is largely a body of elitist petitioners to the government. He turns it into a mass movement. Right? You should read a little bit. It's good that you have opinions, but it's a good idea to know what you don't know and then actually try to test your hypothesis against material that is available. And there is literally tons upon tons of material that shows, forget about people who like him. Why don't you read his best critics? Why don't you read George Orwell, who did not like Gandhi and who's a pretty well-known writer and a deep influence not only on modern journalism, but also on the way the English language is written, right? And he makes it clear at the outset. He has an essay called Reflections on Gandhi. You can find it online anywhere. He opens with saints must be judged guilty until proven innocent. That's how he starts. And he makes it clear that you may also have an aesthetic dislike for Gandhi like I do. Why don't you read something? Read good critics. See, there is everybody is open to criticism. And you can have any opinion that you want, but people care for your opinion only when they know that your opinion is based on either extensive experience, extensive and diverse experience, or it is based on extensive and diverse research and reading. Right? The convenience with which anybody can have an opinion on everybody, on anything right now, that is a mark of industrial modernity. Right? I don't need to know you at all. I'm looking at you on a screen and I can have an opinion on you. But it will be an ill-informed opinion. Because I don't know you. Fact remains, I don't know you. Does that answer your question? There is no, it's not just the impact that Gandhi has on, and you went on in saying all those things about racist and whatnot. I'm assuming that Martin Luther King and Nelson Mandela know a thing or two about racism. Perhaps, maybe something that you don't know. Have you read them on Gandhi? Not yet. Exactly. Right? What you're talking from is a lot of material that comes from either radical scholars who want to take a position and who are in a tearing hurry to take a position, or from just good old-fashioned bad intentions. Right? What you don't know is the number of times that he was jailed on 10 occasions in South Africa. And on every occasion, right, that he was beaten, and you perhaps don't know how many beatings he took from the number of people, right, is he had no socialization with Africans. But you will find mention of how badly they beat him. That was his exposure to Africans. Despite that, he comes a long way. Okay, he is subject to whatever knowledge was available at that time. And because that knowledge came from European racism, everybody had similar views. So this is very convenient to judge somebody who came before your time by your standards. It's very convenient. You don't have to do anything for that. You just need to have an opinion. Having an opinion, a long time ago, an editor of mine once screamed at me for a mistake that I'd made and told me something that I've never forgotten. He told me opinions are like assholes. Everybody has one. I'm not interested in your opinion. Tell me what you found out. So it's a basic thing about research.
it's very easy to turn around. This is my opinion on something. That's okay. It could be your opinion. You can have an opinion on anything you want. A child has opinions on everything. But it's a good idea to test your own hypothesis against available material. And just Gandhi's own writings that have been compiled are in 100 volumes, 50,000 pages. It'll take you a lot of time to figure out the matter. It doesn't take that much time to have an opinion or express it. Yeah? Anybody else? Yes, sir. Next question is going to be raised from Lala Tindu Swain. If I pronounce correctly, please you may go with your question. जी कौन बोल रहे हैं? Is Lala Tindu Swain say he or she might be having some question. If there is a question, please kindly you can unmute yourself and go for the question. If not, then we can take the questions which has been taken. आयुष चतुर्वेदी का एक सवाल है कि उन्होंने जो प्रमाण दिखते गए उसके हिसाब से अपना विचार बदला, जो सही है. बहुत लोगों ने लिखा है इस पे कि गांधी जी का जीवन ये बताता है कि इंसान कैसे अपने आप से और बड़ा होता चला जाता है लगातार. और वो कह रहे हैं कि उस समय आधुनिक तकनीकों की आलोचना करते थे, आज जीवित होते तो खुद के विचार पे परिवर्तन करते लैपटॉप से. देखिए ये सब गालिब का है कि हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता. तो यूं होता तो क्या होता तो बहुत कुछ हो सकता है. लेकिन गांधी जी की जो आधुनिक तकनीक की आलोचना थी वो आज उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी है. इन्वायरमेंटलिस्ट क्यों इतनी बड़ी संख्या में गांधी जी में प्रेरणा पाते हैं? क्योंकि आपको और कोई दूसरा मिलेगा नहीं जो इतनी बड़ी बात इतने पहले कह जाता. जो उनकी इंडस्ट्रियल मॉडर्निटी की क्रिटिक है वो तो उसके लिए जो आज एविडेंस है वो पहले से कहीं ज्यादा है. देखिए मेरे लिए तो जो मैं आपको कहता हूं, मैंने लगभग 25 साल पर्यावरण की दृष्टि से काम किया है, उसी से दुनिया देखी समझी है. और पर्यावरण की दृष्टि में सब कुछ आ जाता है क्योंकि पर्यावरण मतलब सब कुछ है. फिर आपको इतना बड़ा विचार, इतनी सटीक आलोचना औद्योगिक आधुनिकता की कहीं मिलेगी नहीं इतने सरल भाषा में. तो 10 हो गया है, मेरे ख्याल से इसको समेटा जाए. जी सर, एक आखिरी प्रश्न है प्रिया खंडेलवाल का. जी. उनका कहना है कि व्हाट द गांधीज व्यूज ऑन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन. तो उन पे सर थोड़ा सा जानकारी वो आपसे पाना चाहते हैं, अगर आप देना चाहें तो. गांधी जी के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या ख्याल थे? गांधी जी विश्वास वाले आदमी थे और उनका कहना था कि मैं अपने विश्वास से दुनिया देखता हूं. इसका मतलब ये नहीं कि जो उनके विश्वास से नहीं देखता वो गलत है. वो ये मानते थे कि अलग अलग तरह से दुनिया देखी जा सकती. तो उस तरह से अगर आप देखेंगे तो गांधी फिलोसॉफिकली एनार्किस्ट आदमी, क्योंकि उनके जो सबसे करीब काम करने वाले लोग थे वो उनके सबसे बड़े आलोचक भी थे. और आपको इस तरह के फिगर्स आसानी से मिलेंगे नहीं. उनके साथ जो काम करने वाले थे उसमें सब तरह के पॉलिटिकल आइडियाज के लोग थे जिनके बहुत गहरे मतभेद थे गांधी जी के साथ. लेकिन वो लोग गांधी जी के साथ काम कर लेते थे क्योंकि गांधी जी के पास एक ऐसा तरीका था. उनका ये कहना था अग्रीमेंट इज ओवररेटेड, कोऑपरेशन इज इंपॉर्टेंट. भाई ये जरूरी थोड़ी है कि आप और मैं एक ही मत रखें. बात यह है कि क्या हम साथ में एक दूसरे के काम कर सकते हैं, एक दूसरे से कुछ अच्छी बात कर सकते हैं क्या? तो अगर आप उस दृष्टि से देखेंगे तो आपको और कोई ऐसे लोग मिलेंगे नहीं जो इतनी तरह तरह के लोगों को अपने साथ खींच लेते हैं. और क्योंकि उनका धार्मिक विश्वास था तो वो हर किसी के धार्मिक विश्वास का सम्मान करते थे. तो उनको किसी भी धर्म से उस तरह की कोई बहुत आपत्ति नहीं थी. लेकिन ये भी गांधी जी ने कहा है कि सारे धर्म इंसान के बनाए हुए हैं, ईश्वर के बनाए हुए नहीं है. और इस मामले में वो प्रोफेटिक थे क्योंकि बहुत सारी जो नई सामग्री इस पे आ रही है आर्कियोलॉजी से, हिस्ट्री से, वो बता रही है कि जो मॉरलाइजिंग गॉड्स शुरू होते हैं वो स्टेट फॉर्मेशन के बाद आते हैं. स्टेट फॉर्मेशन के पहले मॉरलाइजिंग गॉड्स नहीं. यानी
लोग कहते हैं कि धर्म से राजनीति बिगड़ रही है, लेकिन बहुत सारी नई जानकारी ये बता रही है कि सभी धर्मों को बनाया राज्य ने है और महिलाओं को नियंत्रित करने के लिए बनाया है, क्योंकि राज्य का आधार ही गुलामी है। जब तक प्रजा नहीं होगी तब तक राज्य कहां से होगा? तो आप चाहें तो कभी और इस पे बात हो तो मैं आपको इस पे बहुत सारी नई सामग्री दिखा सकता हूं। मतलब देखिए, मैं दुनिया को देखने समझने का जो मेरा तरीका है, पहला वो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से आता है, वो साइंस से आता है, लेकिन उससे ज्यादा जो मैं मानता हूं वो साधारण लोगों की सामाजिक दृष्टि मानता हूं। तो बहुत सारा नया कॉग्निटिव साइंस, न्यूरो साइंसेज हमको ये बता रहे हैं कि हमारा कॉग्निटिव सिस्टम एसेंशियली सब्जेक्टिव है। We have an extremely limited capacity to understand the truth, right? And I can literally bombard you with tons upon tons of information from the cutting edge of cognitive sciences, from the cutting edge of neurobiology, to show that the human capacity for truth is extremely overrated. Our ability to figure things out. We are champions of bullshitting to ourselves. Right? And this man says about 100 years ago, more than 100 years ago, he understands that our perspective is subjective. Right? He doesn't buy any ideas of supreme rationality that have been entirely discredited in our world today. So, I mean, if you want to... yeah, thank you, sir. If you want to get into the cognitive sciences, that's my domain, actually. How humans bullshit to themselves, yeah, I can go on and on that. Yes, thank you very much, sir. We are indeed privileged to have you today here and speaking on the relevance of Gandhian principles, the three major points which you have pointed out are indeed... मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगा। हम ये बहुत सारे लोग गांधी जी के नाम पे उबे हुए लोग दूसरों को उबाते हैं, तो हमें एक चीज तो ये तय कर लेनी चाहिए कि हम गांधी जी के नाम पे दूसरों को बोर ना करें। तो इसमें से कुछ स्टॉक सेंटेंसेस निकले होंगे। वो स्टॉक सेंटेंसेस में से एक है रेलेवेंस ऑफ महात्मा गांधी। देखिए, सामाजिक प्रासंगिकता उस व्यक्ति की होती है जो जीवित होता है, जो सामने कोई चुनौती हो तो उसके जवाब में कुछ कर सके, है ना। उनको गए को तो 70 साल से ज्यादा हो गए, है ना। अब हम बैठ के उनकी प्रासंगिकता पे अपने कॉलेज लेवल के डिबेट्स करना चाहते हैं। इससे पता लगता है कि हम कितने अप्रासंगिक हैं। इससे ये पता लगता है कि हमारी बातचीत उबाऊ और इरेलेवेंट है। तो अगर हम अपनी बातचीत अच्छी करना चाहते हैं तो हम जो स्टॉक टाइप, मैंने आपसे पहले जॉर्ज ऑरवेल की बात की। जॉर्ज ऑरवेल का एक प्रसिद्ध निबंध है पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, which is pretty much anybody who's followed the trajectory of writing non-fiction in English will tell you that it is a deep influence in how the English language is written by people who write it well today in non-fiction. And one of the 6 principles that he lays out in that essay is avoid using any cliche term that you're used to hearing or seeing in print. You know, we are primates. We learn through imitation. Whatever we see around ourselves, we go on repeating it. So the idea is to not repeat boring and patently wrong formulations. A lot of bored people who don't challenge themselves enough, right, use this as an excuse to bore other people. So whenever you hear the term relevance of Mahatma Gandhi, just avoid reading it, whatever your opinion on Gandhi. Because there is nothing you will get out of people who are either bored or wrong or worse still, both. इसीलिए जो पहले अपना अज्ञान स्वीकार करे वो ज्यादा अच्छा है। कुछ चीजें मैं जानता हूं जो मेरे अनुभव में आई हैं, जो मेरे अध्ययन में आई हैं, जो उससे बाहर है वो मैं नहीं जानता। बहुत आसान तरीका है।
सबके साथ हो जाने का। और गांधी जी के लिए सबसे बड़ी बात क्या होगी कि आप लोग खुश रहें, समृद्ध रहें, आप लोगों का जीवन मजेदार हो, आप में परोपकार हो। इससे ज्यादा क्या चाहेंगे वो क्या आप अभी नहीं कर सकते? मतलब आपके परिवार के लोग भी वही चाहेंगे, है ना? तो ये गांधी जी का बोझा लेके चलने की कोई जरूरत नहीं है। गांधी जी इतने उबाऊ आदमी नहीं थे जितना मान लिया गया। बहुत मजेदार आदमी थे। और अपना जीवन मजेदार करना, अपना जीवन व्यापक करना, बड़ा करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ओपिनियन क्या है, आपका अपनी मान्यता क्या है। हर किसी की होती है, आपकी भी है। बात यह है कि आपका जीवन कितना बड़ा है, कितनी तरह के लोगों से आप मिलजुल सकते हैं, कितनी तरह के लोगों से आपका लेन देन है। क्या आप अपने कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं? उससे ये तय होता है। तो मैं आप लोगों से एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे बड़ा पाप होगा गांधी जी के नाम पे दूसरों को बोर करना। एक मजेदार जीवन था, आपको अच्छा लगे ठीक है, नहीं अच्छा लगे छोड़ दीजिए, लेकिन बोर मत कीजिए, और हो सके तो गलत मत करिए। ठीक है तन्मय, मुझे इजाजत मिलेगी? सर आपका कुछ समय चाहिए था। अभी और समय चाहिए? नहीं मतलब वी आर जस्ट गोइंग टू कंक्लूड इट सर। बताइए, कुछ और कोई सवाल पूछना चाहता है? नहीं सर, आप चाहें तो मैं इन एसेस को डाल दूं या लिंक्स चैट में, कि आपको उससे कुछ मजा आएगा? मैं जॉर्ज ऑरवेल का डालूं? यस सर, संजीव सर को भेज दीजिएगा प्लीज, या फेसबुक पे मुझे दे दीजिए। तन्मय एक दो सवाल ले सकते हैं, सर को थोड़ा हम और मतलब थोड़ा निवेदन कर सकते हैं। सर 10 मिनट दे सकते हैं और बट सवाल थोड़ा ब्रीफ रखें और उसी तरह से आप, और उसमें कोई सवाल हो, मतलब अगर आप अपना ओपिनियन बताना चाहते हैं तो मैं कहूंगा आपको बधाई हो। कोई जिज्ञासा भी मन में हो बच्चों को तो उसके लिए भी आप आमंत्रित हैं। ये मैं लिंक डाल रहा हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जॉर्ज ऑरवेल का रिफ्लेक्शंस ऑन गांधी पढ़िए। किसी व्यक्ति को उसके सबसे अच्छे और ऊंचे आलोचकों से भी देखना चाहिए। मतलब गांधी जी के आलोचकों में रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर और गांधी जी में बहुत बड़े मतभेद हैं, लेकिन गांधी जी को सार्वजनिक रूप से महात्मा कहने वाले पहले आदमी हुए। 1938 में ऐसा वाक्य आता है कि जब वो सत्याग्रह पे बैठे हैं कलकत्ते में, तो शांति निकेतन से बीमार और बूढ़े रविन्द्रनाथ कलकत्ता तक आते, और वो इतने बीमार हैं कि उनको कोई ऊपर ले जा नहीं, वो ऊपर जा नहीं सकते, और गांधी जी उपवास पे बैठे इतने कमजोर है कि नीचे आ नहीं सकते। तो उनको एक कुर्सी पे बिठा के 4 लोग ऊपर लेके गए। 4 लोग कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, और शायद साथ में उनके आचार्य कृपलानी थे, चौथा नाम हो सकता है। ये 4 लोग गुरुदेव को कुर्सी पे बिठा के ऊपर लेके जाते। रविन्द्रनाथ वहां देखते हैं, दोनों कुछ कहते नहीं है, एक दूसरे को देख के आंखें गीली हो जाती है और वापस आ जाते। अगर आपने अपनी जिंदगी में एक भी ऐसा आलोचक पा लिया तो आप खुद धन्य हो जाएंगे। अच्छे आलोचक होने चाहिए जिन लोगों के डिफरेंसेस आपसे बड़े डिफरेंसेस हो, छोटे मोटे चवन्नी अठन्नी टाइप नहीं कि मेरा लंच चुरा लिया था इसे। बताया जाए। अच्छा, मैं आपको एक और, जिन लोगों के बहुत पॉलिटिकल सवाल हैं, है ना, आमतौर पे होते ही हैं, क्योंकि हमारे समय का सबसे बड़ा अंधविश्वास तो राजनीति ही है। तो उस समय के एक बहुत बड़े राजनीतिक पत्रकार थे जिनका नाम था लुई फिशर। और लुई फिशर एक हफ्ता गांधी जी के साथ जाके रहे थे, और फ्रीडम मूवमेंट के सारे बड़े नेताओं को आपने हाँ, जुशिया खामरी जी, आपने कुछ सवाल किया था। तो एक पतली सी पुस्तिका है जिसका शीर्षक है, लुई फिशर नाम है उनका, और बहुत बड़े पॉलिटिकल रिपोर्टर थे अपने टाइम के। उस किताब का नाम है वीक विद गांधी। ठीक है, आप चाहें तो जो गांधी जी में सबसे सुंदर प्रोज है उसमें से एक इसके एपिलॉग में से
जो वो कहते हैं वो जिन्ना से मिलकर आए हैं दिल्ली में। कहते हैं जिन्ना बहुत आर्टिकुलेट आदमी है, बहुत इंटेलिजेंट। जिन्ना हमेशा आपको अपने कंक्लूजन्स देते। एनी कॉन्वर्सेशन विद गांधी इज लाइक ओपनिंग अ न्यू पॉकेट ऑफ थॉट। और ये वो आदमी है जो रोजवेल्ट और स्टालिन और दुनिया के सारे बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के इंटरव्यूज किया करता था आए दिन। वो इस आदमी पे क्या कहता है ये जरा पढ़िए। और वो बहुत दुखी थे। कोई एक हफ्ता जो वहां गांधी जी के आश्रम में वर्धा में रहे हैं, वो क्योंकि वर्धा के आश्रम में अब वो अमेरिका में रहने वाला आदमी, उसको वहां क्या खाना मिलेगा और क्या सोने की जगह मिलेगी आप सोच सकते हैं। तो वो बहुत डिटेल में बताता है कि वो कितना अनकंफर्टेबल था। और अगर उसका एक अंश जो डिस्क्रिप्शन है उसके एपिलॉग में गांधी का अगर आप लोगों में आ पाए तो आपका जीवन सुखी होगा। गांधी जी को छोड़िए, आपका जीवन सुखी होगा। अ वीक विद गांधी, लुई फिशर। मैं आपको लिंक डाल देता हूं। कोई और सवाल है? तन्मय ही है ना अभी इसके? तन्मय जी, you have any questions more? no sir, I don't have any. जी, तो पूरा किया जाए। हाँ, मुझे लगता है सोपान जी हमें एक दिन और वक्त निकालना पड़ेगा आगे के लिए, बिकॉज हमारे बच्चे सवाल जो लेकर के आ रहे थे, ये मुझे लगता है कि जनरली गांधी पर जब भी हम इस तरह के डिस्कशंस करते हैं तो कुछ भ्रांतियां हमारे मन में हमेशा रहती हैं और जिज्ञासा बच्चे हमारे सामने यही सवाल लेकर के आते हैं। कुछ एक दो सवाल और होते जो शायद समय के कारण लोग नहीं पूछ पाए कि गांधी ने फलाने के लिए क्या किया नहीं किया। ये सब सवाल मुझे लगता है औपचारिक सवाल हो जाते हैं इस तरह के समारोह में। तो लेकिन एज एकेडमिक्स हम लोग हमेशा बच्चे जब सवाल करते हैं, देखिए मैं एकेडमिक आदमी नहीं, लेकिन यही प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ। तो बच्चे सवाल अक्सर यही करते हैं कि भगत मुझे स्कॉलरशिप, मैं स्कॉलरशिप को बहुत मानता हूँ, अच्छी स्कॉलरशिप को बहुत मानता हूँ। अच्छे लोगों की स्कॉलरशिप से मुझे बहुत फायदा हुआ। तो मुझे, लेकिन मेरा काम सामाजिक है, वो एकेडमिक नहीं है। मुझे लगता है ज्ञान मीमांसा पे ही आपका एक विचार आगे के लिए बताइए। एक आप जब चाहें कॉग्निटिव साइंसेस पे आप जब चाहें बुला लीजिए मुझे। इम्पोर्टेंट आई थिंक, and I can actually link if you so feel the need. I can link with cognitive sciences with ideas from ancient Indian philosophy. Exactly. With the cutting edge of what we are finding out about political sciences, right? With the cutting edge of what we know about evolutionary biology, right? Those are interesting subjects, and I am deeply interested in Gandhi. But I'm not I think we will be very happy defending Gandhi against the kind of nonsense that goes around. People who are happy with that nonsense, good luck to them. Best of luck. Yeah, I think we will have another round of discussion with Sopanji on I think that is very interesting, और I think the students will love it. I think उसमें और वो सवाल बहुत स्पष्ट होंगे, उसमें मुझे लगता है उसमें इतनी सारी भ्रांतियां नहीं होंगी। लेकिन फिर अगर उस पे बात होगी ना, अगर लोग तर्क से मुझसे बात करना चाहते तो फिर अपना सारा मटेरियल लेकर आए, क्योंकि मैं अपना मटेरियल तैयार रखता हूँ। इतनी देर में जो बात की मैंने यहाँ लिंक्स डाल दिए। Exactly. जॉर्ज ऑरवेल का मुझे आपको वो भी देना है ना, पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, तो मैं वो भी उसकी एक लिंक डाल देता हूँ। बल्कि मैं ऐसा क्यों नहीं करता कि उसके जो 6 इंस्ट्रक्शंस हैं लिखने पे वो डाल देता हूँ और लिंक डाल देता हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा मजा आएगा। यस सर। जी हाँ। हाँ, तो मुझसे मतलब जो कोई इस तरह की बातचीत करना चाहेगा तो वो अपना वो क्या जानता है और कैसे जानता है इसकी तैयारी के साथ, क्योंकि आप लोग मुझे फीस नहीं दे रहे हैं, है ना, और आपका कोई एंटाइटलमेंट नहीं है मेरे टाइम को लेकर। अगर आप सामाजिक बात करेंगे मैं हमेशा हाजिर हूँ। अगर आपको ज्ञान के अहंकार की बात करनी है तो फिर वो दूसरी साइड है, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और फीस देनी पड़ेगी। Yeah, we'll do that. Yes, Tanmay, please proceed. Yes, sir. So, I request the technical team to kindly put the feedback form in the chat box so that the Gandhi Study Circle of Zakir Hussain Delhi College comes to know eventually how to organize better lectures and webinars in the future.
एक तो निवेदन मैं कर सकता हूँ तब मैं मुझे जी सर, संजीव जी जी ने सर। जो पहला पोस्टर भेजा था, एक तो अपनी सर। जो सामाजिक बातचीत है उसमें किसी का फोटो लगाने की जरूरत नहीं। मैं कोई फिल्मी सितारा नहीं हूं कि मेरा थोबड़ा देख के कोई मुझे सुनने आ जाए। दूसरी चीज, उसमें बुद्धिजीवी और चिंतक और इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। ये तरीका कुल मिला के अपने आप को दूसरों से बेहतर सिद्ध करने का, कि मैं बुद्धिजीवी हूं, रिक्शे वाला बुद्धिजीवी नहीं है। रिक्शे वाला अपनी बुद्धि के हिसाब से अपना जीवन जिए, वो भी बुद्धिजीवी है ना। कोई मैं अंग्रेजी में 4 शब्दों में गिटर पिटर कर लेता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे कोई बहुत ऊंचा और बड़ा हो गया। तो सामाजिक बातचीत में ये बुनियादी विनम्रता रखना। शिक्षाविद, पर्यावरणविद, ये कहाँ के शब्द है? मतलब कोई कहता है कि ये रिक्शाविद है, या ये बिजली का काम करता है, इलेक्ट्रिशियन है, बिजलीविद है। पर्यावरण जानते हैं तो पर्यावरणविद, क्योंकि उसकी विद्या किसी तरह से दूसरों की विद्या से ऊपर है। ये सामाजिक बात करने का तरीका है। भाई मैं लेखक हूं, पत्रकार हूं। हाँ, जो मेरे अध्ययन में आया है वो अगर मैं सामाजिक रूप से काम करता हूं, आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं तो बताना मेरा काम बनता है, वो मैं कभी भी बता सकता। लेकिन अगर कोई ज्यादा तर्क और वाद विवाद करना चाहता है तो वो तरीका बात का अलग है, वो सामाजिक तरीका। इसलिए थोड़ा विनम्रता, बातचीत में सादगी। जी हम क्षमा चाहते हैं इस बार, हम अगली बार से ध्यान और रखेंगे। किसी को बुद्धिजीवी नहीं कहना कभी, सर जी। गाली मानना इसको। चिंतक, आजकल लोग मतलब ऐसा करके मैं थोड़ा दिलीप कुमार टाइप चिंतक हो जाऊंगा, हाँ, ट्रेजेडी किंग बन के। उसका क्या मतलब है चिंतक? हर किसी को चिंताएं होती हैं, हर कोई चिंतन करता है। ये सब चली चलाई बातें, इन पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। अच्छी बातचीत में ये जरूरी नहीं। जी सर, I would like to invite Ayush to kindly give the vote of thanks now. सोपान जोशी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़रूरी बात जो आपने कही कि हमें अपनी अज्ञानता को मानना है। मीर तकी मीर का एक शेर भी है कि यही जाना कि कुछ न जाना है, सो भी एक उम्र में हुआ मालूम। तो यही हमें जानना है कि मीर तकी मीर जो लिखते हैं कि एक उम्र में जाके हमें पता चला कि हमें कुछ नहीं पता। तो गांधी शायद ये बात जानते थे और हमें जानने की ये बात बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद हमारी प्रधानाचार्य प्रोफेसर संगीता पंडिता मैम का, गांधी स्टडी सर्कल के संयोजक व हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर संजीव कुमार सर का, टीचर कोऑर्डिनेटर्स डॉक्टर शबाना आजमी मैम, डॉक्टर तृप्ता शर्मा मैम, डॉक्टर आफ्ताब आलम सर, डॉक्टर उमाशंकर सर का भी बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आप सबका, क्योंकि जैसे किसी मुल्क की सबसे बड़ी पूंजी वहाँ की आवाम होती है, वैसे ही किसी कार्यक्रम की सबसे बड़ी पूंजी दर्शक और श्रोता होते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद महात्मा गांधी का कि जिन्होंने अपने विचारों, अपने कार्यों से ऐसी अलग जगाई कि जिससे हम सभी प्रेरित हुए। और ये कार्यक्रम उस बात की तस्दीक करता है कि वो अलग आज भी जीवित है हमारे अंदर, और ता कयामत जलती रहेगी वो ज्योति, चाहे जितनी भी कोशिशें की जाएं बुझाने की। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर। The participants are requested to kindly wait for some time. We have some announcements to make. The Gandhi Study Circle of Zakir Hussain Delhi College is going to organize a short-term certificate course on non-violent communication. In addition to providing a theoretical understanding of the same, we are also trying to make all human beings pretty good in their character. The application is open to all students of Delhi University. Though we don't have any application fee, the course fee is 300 rupees. I request all to kindly have a look of the course which is there in the chat box, and if interested, kindly apply for the same. Thank you. Thank you.